Hello students, welcome to NCERT online classes. Today we will cover class 7 geography chapter number 1 geographical diversity of India. In this chapter we will see what are the various geographical features of India and how these features are shaping our culture, language, diversity, food and daily life. As we know, India has almost all type of geographical features like mountains, deserts, plains, plateaus, and many more. We will study how these features are different from each other and what are their characteristics. We will also see how these features are contributing in agriculture and everyday life. Let's dive into this chapter and start learning. In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into space, spoke with the then Prime Minister of India, Indira Gandhi. When she asked him, "How does India look from space?" he replied, "Sare jahan se acha," better than the whole world. This is the title of a well-known poem of the early 20th century. So this incident is telling about a time when Indian astronaut Rakesh Sharma went to space. जो वो स्पेस में गए 1984 में, उस समय जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा स्पेस से इंडिया कैसा दिखता है। राकेश शर्मा ने जवाब दिया कि सारे जहां से अच्छा। इसका मतलब है सारी दुनिया में सबसे खूबसूरत देश भारत ही है। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया का पूरे ग्लोब पर या पूरी दुनिया में क्या पोजीशन है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड and a part of Asia. Along with its neighbors Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Myanmar, it forms the region known as the Indian subcontinent. Subcontinent since it is a part of the continent of Asia. Often for the purpose of discussion, we refer to five regions: the Great Mountain Zone, the plains of Ganga and Indus, the desert region, southern peninsula and the islands. In this chapter, we will fly over these zones, providing you with a bird's eye view of these features and offering glimpses of what things look like in close up at some of these places. It would be difficult to go into all the details at this stage since, as you will soon see, India is large and diverse. India दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री है लैंड वाइज। इसका मतलब 7वां सबसे बड़ा देश। और इसके जो नेबर्स हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं? नेबर्स कौन से होते हैं? जिनके साथ हम अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जिनके साथ इंडिया की आउटर बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, वो हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। इन सभी कंट्रीज का जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनके साथ मिलके जो रीजन बनता है उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब कॉन्टिनेंट तो आपको पता है कि ऐसा लैंड मास जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और जिसके बीच में अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज हों, तो उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सब कॉन्टिनेंट उसी कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है जो उसको सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे। जो इंडिया वाला हिस्सा है, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज वाला हिस्सा है एशिया का, उसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये इंडिया की तरह एशिया का ही एक हिस्सा है। 5 तरह के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। सबसे पहला आता है माउंटेन, प्लेन्स। ये प्लेन्स किससे बने हैं? गंगा और इंडस से। गंगा और इंडस ये दोनों रिवर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि प्लेन्स बनाती है। और ये रिवर्स प्लेन्स कैसे बनाती है आगे चल के देखेंगे। डेजर्ट रीजन, द सदर्न पेनिनसुला एंड द आइलैंड। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। The Himalayan mountain range stands as a natural barrier in the north, while the Thar and the Arabian Sea mark the western limits. To the south, the Indian Ocean, and to the east, the Bay of Bengal form a natural boundary. These geographical features create a separation between India and the rest of the continent and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history. अब जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों बोले जा रहे हैं? क्योंकि ये लैंडफॉर्म्स हैं, इनके कारण इंडिया की नेचुरल बाउंड्री बन रही है। नेचुरल बाउंड्री का मतलब क्या है कि नेचुरल तौर पे इंडिया का जो बाउंड्री है, जो उसका बॉर्डर्स हैं, वो बन रहे हैं इन लैंडफॉर्म्स के कारण। तो अब कैसे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं? इसके नॉर्थ में माउंटेन रेंज है जिसे हिमालयन रेंज बोला जाता है।
इस रेंज में वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स भी हैं। इसके साथ ही वेस्ट में डेजर्ट है जो कि पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। वी विल ओनली टॉक अबाउट इंडियन डेजर्ट थार। साथ में वेस्ट में ही अरेबियन सी है जो इंडिया में एक नेचुरल बाउंड्री बना रहा है। इंडियन ओशन इंडिया के साउथ में आता है और ये अकेला ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री पर पड़ा हुआ है। इसके अलावा जितने भी ओशंस हैं उनके नाम किसी कंट्री पे नहीं है, लेकिन इंडियन ओशन का नाम ही इंडिया पे है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है विच इज़ अगेन अ वाटर बॉडी। तो इस तरह से हमने देखा इंडिया के चारों तरफ नेचुरल बाउंड्रीज बनी हुई हैं। कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे सी, बे या ओशन है। द हिमालयस सीम टू टच द स्काई। In fact, many of its peaks are over 8,000 meters in height and are together called the 8,000ers. This mountain range stretches across 6 countries in Asia: India, Nepal, Bhutan, China, Pakistan and Afghanistan. Himalayan range है, उसमें कुछ ऐसी peaks हैं जो 8,000 मीटर से ऊंची हैं, जिसके कारण हिमालय को 8,000er भी बोला जाता है। तो ये जो हिमालयन रेंजेस हैं, ये इनका एक्सटेंट क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हिमालयन रेंज कौन कौन सी कंट्रीज में स्ट्रेच करती है। हिमालयन रेंज अफ़गानिस्तान से शुरू होती है, पाकिस्तान में होते हुए इंडिया में, नेपाल में, भूटान में और चाइना में स्ट्रेच करती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हिमालयाज़ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान में शुरू हो रही है, पाकिस्तान में जा रही है, फिर इंडिया में एंटर करती है, जहाँ पे ये नेपाल और भूटान को क्रॉस करते हुए चाइना में भी जा रही है। जैसे हिमालयन रेंज का इधर वाला हिस्सा इंडिया में है और उधर वाला हिस्सा चाइना में है। भागीरथी जो कि एक नदी है और गंगा की ट्रिब्यूटरी है, मतलब जिसका पानी गंगा में जाकर मिल जाता है, वो गोमुख से शुरू होती है। गोमुख का मतलब होता है गाय का मुंह, जो कि गाय के मुंह की तरह दिखता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ से इसे गोमुख बोला गया है और यहाँ से भागीरथी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, मतलब यहाँ से बहना शुरू करती है ये और जाकर गंगा में मिल जाती है। और ये जगह उत्तराखंड में है। गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर का एक हिस्सा है। गंगोत्री ग्लेशियर ऐसे ही एक ग्लेशियर है जहाँ से भागीरथी रिवर निकलती है। ये हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। इसको भी सैक्रेड माना जाता है और यहाँ पे भी तीर्थ यात्री आते हैं। गोमुख ट्रैकिंग के लिए भी बहुत पॉपुलर है। इस मैप पे हम देख सकते हैं कि गंगा यहाँ से निकल रही है और इस तरह से जा रही है। उत्तराखंड से निकलकर ये यूपी में, बिहार और वेस्ट बंगाल में होकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यहाँ से गंगा निकल रही है। इस लोकेशन पे यहाँ भागीरथी है जो आकर गंगा में मिलती है। भागीरथी गोमुख से निकलकर गंगा में फ्लो करती है। इसी तरह से गोमती, घग्गर, ये सभी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा में मिल रही हैं। हिमालयन माउंटेन्स हैं, उनको सेक्रेड भी माना जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं और उन टेम्पल्स से निकलने वाली जो रिवर्स हैं उनका कॉन्फ्लुएंस है, जो जहाँ पे वो मिलती हैं, जहाँ दो रिवर्स मिल जाती हैं उसको संगम बोलते हैं। वो संगम है जो वो भी बहुत सेक्रेड माना जाता है। जैसे कि गंगा जब निकलती है तो उसको अलकनंदा नाम से जाना जाता है। अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती है वहाँ पे विष्णु प्रयाग नाम की जगह है जो बहुत सेक्रेड है। ऐसे ही अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है, नंद प्रयाग जगह बनती है। करण प्रयाग में अलकनंदा में पिंदरा गंगा मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आकर मिलती है। भागीरथ जहाँ गंगा में मिलती है उस जगह को देव प्रयाग कहते हैं और देव प्रयाग के बाद ही अलकनंदा है
वो गंगा बन जाती है। यमुनोत्री एक बहुत ही सेक्रेड प्लेस है, वहाँ से यमुना निकलती है और आगे चल के यमुना भी गंगा में मिल जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि हिमालयाज़ इम्पोर्टेंट क्यों माने जाते हैं और उनका हमारे रिलीजन में क्या इम्पोर्टेंस है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि हिमालयाज़ बने कैसे। हाउ द हिमालयाज़ वर फॉर्म्ड, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अ लॉन्ग टाइम अगो इंडिया वाज पार्ट ऑफ अ मच बिगर लैंडमास कॉल्ड गोंडवाना, where its neighbor was Africa. At some point, it broke away and slowly started moving north. About 50 million years ago, it reached the landmass of Eurasia and collided with it. As India pushed against Eurasia, the land between them crumbled and rose up, just like how a carpet wrinkles when you push it. That's how the mighty Himalayan mountains were formed. Millions of years ago, India एक बहुत बड़े लैंड मास के साथ जुड़ा हुआ था जिसका नाम था गोंडवाना, और उसके ही नेबर में था अफ्रीका। मतलब इंडिया पहले अफ्रीका का नेबर था और उस पूरे लैंड का नाम था गोंडवाना। कुछ समय के बाद इंडिया है गोंडवाना से टूटकर नॉर्थ की तरफ चलने लग गया और 50 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना से टूटा हुआ इंडिया का हिस्सा आकर यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा गया। मतलब यूरेशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसके साथ आकर टकराया और उसको थोड़ा सा धकेलने लग गया। जब कोई चीज आके किसी से टकराती है तो जो चीज स्टेबल खड़ी होती है उसको धक्का लगता है। ऐसे ही जब इंडिया गोंडवाना से टूटकर आया और यूरेशिया से उसकी टक्कर हुई तो उसने यूरेशिया का ये वाला हिस्सा उसको धक्का मारा। धक्का मारने के कारण ये जगह है थोड़ी ऊंची उठ गई। उसी तरह से जैसे अगर हम कारपेट को धक्का मारे उसमें सिलवट पड़ जाती है, उसी तरह से जब इंडिया जो कि गोंडवाना से टूटकर आया था उसने यूरेशियन प्लेट को धक्का मारा तो उसमें जो सिलवटें पड़ी वो हिमालय बन गया। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे very slowly, about 5 centimeters each year, which is much slower than the rate at which your hair grows. This means the Himalayas are still growing taller, just a tiny bit each year, about 5 millimeter, but over a millennium that adds up to 5 meters. और ये पुश जो इंडिया ने यूरेशियन प्लेट को किया था वो इतना पावरफुल था कि अभी भी इंडिया है यूरेशियन प्लेट को पुश कर रहा है, जिसके कारण हिमालयाज आज भी बढ़ रहे हैं और उनका बढ़ना अभी तक चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हिमालयाज की हाइट अभी भी बढ़ रही है, जिसके कारण हिमालयाज को यंग माउंटेन्स या एवर ग्रोइंग माउंटेन्स बोलते हैं। मतलब वो माउंटेन्स जो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये जो उनका बढ़ना है ये हर साल 5 सेंटीमीटर तक बढ़ रहा है। हालांकि ये काफी स्लो है क्योंकि ये हमारे बालों की ग्रोथ से भी ज्यादा स्लो है, लेकिन धीरे धीरे करके ये कुछ सालों में 5 मीटर तक बढ़ जाएंगे। द वर्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स, हिम मीनिंग स्नो एंड आलय मीनिंग अबॉर्ड और ड्वेलिंग, thus abode of snow। हिमालय संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम और आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब होता है रहने की जगह। हिम आलय का मतलब है बर्फ के रहने की जगह। आगे हम हिमालय की डिविजन्स देखेंगे कि हिमालय को किस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हिमालयस आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। सबसे पहले हिमाद्री के बारे में पढ़ेंगे। हिमाद्री ऑल्सो नोन एज द ग्रेटर हिमालयस आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग पार्ट ऑफ द रेंज, home of towering peaks like Mount Everest and Kanchenjunga. This region remains snow covered throughout the year. Life here is tough and there are not many human settlements. The lower Himalayas lie south of the greater Himalayas and have a more moderate climate, allowing rich biodiversity and human habitation. Popular hill stations such as Nainital in Uttarakhand, Darjeeling, West Bengal, Shimla, Himachal Pradesh and Mussoorie, Uttarakhand are located in this region. The Shivalik Himalayas, the outer Himalayas, form the outermost and lower range consisting of rolling hills and dense forests. These foothills are rich in wildlife, serving as a transition zone between the Himalayas and the Gangetic Plains, also known as the Northern Plains. हिमालयस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो नदरन मोस्ट पार्ट है और सबसे ऊपर आ रहा है उसको द ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं। ये रीजन पूरा साल बर्फ से कवर रहता है, जिसके कारण यहाँ पे लोग नहीं रहते। यहाँ पर बहुत कम लोग रह रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी यहीं पर हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट
या कंचनजुंगा। इसके अलावा यहाँ पे वही लोग रह सकते हैं जो रिसर्च करने के लिए गए हैं या जो सोल्जर्स हैं। इसके अलावा बहुत कम आम लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की वेजिटेशन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पूरा साल बर्फ रहती है और बर्फ रहने के कारण यहाँ पे कुछ उग नहीं सकता। और सेकंड पार्ट है जिसे हिमाचल बोलते हैं या लेसर हिमालयाज बोल रहे हैं, वो ये रीजन है। इस रीजन में बायोडाइवर्सिटी अच्छी है क्योंकि यहाँ का मौसम कुछ बेहतर है, जिसके कारण बहुत लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे शहर और गांव हैं। ये जो एरिया है, इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, जिसके कारण यहाँ पे रहना इजी हो गया है। और साथ में ही यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि उत्तराखंड का मसूरी, हिमाचल में शिमला, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं। थर्ड पार्ट है वो है शिवालिक हिल, जिन्हें आउटर हिमालयास भी बोला जाता है क्योंकि ये सबसे बाहर वाली साइड है। ये एरिया है, ये आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता है या शिवालिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रोलिंग हिल्स पहाड़ियाँ हैं, मतलब कि घुमावदार पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स मिलते हैं। यहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा ये गंगेटिक प्लेन्स और हिमालयास के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन का मतलब है ऐसा इलाका जो दो डिफरेंट एरियाज के बीच में हो और इस एरिया में दोनों की खूबियां हो। शिवालिक्स के बाद नीचे वाली साइड गंगेटिक प्लेन्स शुरू हो जाते हैं और शिवालिक के ऊपर वाली साइड लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालयाज हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन जोन बोला गया है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच है। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और भी बहुत तरह के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। The traditional house construction method in Western Himalayan region is known as Katkuni or Dhajji Diwari style of houses. A combination of locally available stone and wood is used, which not only keep the house warm but also resist damage in the event of mild earthquakes. Western Himalayan regions में जो घर बनाए जाते हैं उनको काटकुनी या धज्जी दीवारी कहा जाता है, जो कि पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं और इन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि ये ठंड से बचा सकें और अंदर ये वार्म हो। इसके साथ ही ये हल्के फुल्के अर्थक्वेक के झटके हैं उनसे भी बचा सकते हैं। The Great Himalayan National Park in Himachal Pradesh has a wide diversity of flora and fauna. The park has been declared a World Heritage Site by UNESCO. The biodiversity of the park is being preserved by the government as well as the village communities that live inside the park. हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है? यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसका काम है कि पूरी दुनिया में जो नेचुरल और कल्चरल साइट्स हैं उनको देखे और उनको बचाए। उनको बचाने के लिए वो इन साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाल देता है, जिसका मतलब है एरिया जिसको यूनेस्को लिस्ट में डालेगा वो पूरे वर्ल्ड की एक हेरिटेज हो जाएगी, धरोहर हो जाएगी और उसको बचाने का काम पूरी दुनिया का होगा। इसकी जो फंडिंग है और इसकी जो प्रोटेक्शन है यूनेस्को के अंडर होती है। उस कंट्री के साथ जिसमें वो साइट है उसके साथ मिलकर उसकी प्रोटेक्शन करता है और वहाँ पे टूरिज्म को भी बढ़ाया जाता है ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले। और टूरिज्म को बढ़ाने के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उस साइट को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का द ग्रेट नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, नेचुरल ब्यूटी है। साथ में ही यहाँ का फ्लोरा एंड फोना मतलब वहाँ के पेड़ पौधे और वहाँ के जीव जंतु यूनिक माने जाते हैं। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। द वर्ड डेजर्ट immediately evokes an image of a hot place. However, there are also cold deserts and we have one in India. Ladakh is cold desert where winter temperature drop below -30 degree.
There is very little rainfall and landscape is rugged, with rocky terrain, deep valleys and lakes such as Pangong Tso. Tso means lake. The terrain here resembles that of the moon, hence it is called the moonland. Geologists explain the formation of this terrain, as we saw earlier, by the fact that the mountains were folded when the Indian landmass collided with Eurasia. इंडिया में एक हॉट डेजर्ट है जिसे थार डेजर्ट बोलते हैं। इसके अलावा एक कोल्ड डेजर्ट भी है जिसे हम लद्दाख के नाम से जानते हैं। डेजर्ट से समझा जाता है कि कोई गर्म जगह होगी, लेकिन कोल्ड डेजर्ट्स भी दुनिया में होते हैं, ऐसे जैसे कि इंडिया में लद्दाख है। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पे टेम्परेचर -30 डिग्री चला जाता है, मतलब 0 से 30 डिग्री और नीचे। यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, चट्टानें हैं, गहरी खाइयाँ हैं, लेक्स हैं। सबसे फेमस लेक इस जगह की है पैंगोंग सो। सो का मतलब होता है लेक। ये सारा इलाका है, ये सारा रीजन है, वो मून की तरह दिखता है, मतलब चारों तरफ पत्थर, चट्टानें। इसी के कारण इसे मूनलैंड भी बोलते हैं। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि मूनलैंड किसे कहते हैं या कोल्ड डेजर्ट किसे कहते हैं, तो लद्दाख को मूनलैंड या कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि इस जगह की फॉर्मेशन कैसे हुई। वो बताते हैं कि जब इंडियन लैंड मास यूरेशिया के साथ टकराया था, तो टकराने के बाद उसके कुछ हिस्से ऐसे ऐसे करके उनमें फोल्ड आ गए थे। ये जो फोल्ड आए थे, इनके कारण ही ये पहाड़ बने हैं जहाँ पर आज लद्दाख है। द फोल्डेड पोर्शन was part of an ocean, and so the rocks in this area are made largely of sand and clay. Wind and rain have eroded the mountain into the shape you see in the photograph. लद्दाख का ये जो फोल्डेड हिस्सा है, फोल्ड्स पड़ने के कारण बना था। ये हिस्सा कभी ओशन हुआ करता था, मतलब जब इंडियन लैंड मास यूरेशिया के साथ टकराई, उससे पहले इंडियन लैंड मास का ये वाला हिस्सा जहाँ पर आज लद्दाख है, वहाँ पर ओशन होता था, जिसके कारण यहाँ पर अभी भी सैंड और क्ले के पत्थर मिलते हैं। समय के साथ साथ जैसे जैसे हवा चली और बारिश पड़ी, उसके कारण ये इलाका इरोड होता गया, मतलब ये खुरता गया, जिसके कारण इसकी शेप ऐसी है जैसी इस पिक्चर में दिखाई गई है। Despite the harsh conditions, Ladakh is home to unique wildlife like snow leopards, ibex and Tibetan antelopes. The Ladakhi people lead a simple life. The region is known for its ancient monasteries and colorful festivals such as Losar and Hemis festival. लद्दाख में मौसम बहुत ज़्यादा हार्श है, रूखा है, खुश्क है, मतलब ऐसा है जहाँ पर लाइफ का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत यूनिक तरह के वाइल्ड लाइफ मिलती है। लद्दाख की वाइल्ड लाइफ बहुत यूनिक है, जिसमें स्नो लेपर्ड्स आते हैं, आइबेक्स हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, और तिब्बतियन एंटीलोप्स हैं। ये सभी बहुत यूनिक तरह के एनिमल्स हैं जो सिर्फ लद्दाख के एरिया में ही मिलते हैं। लद्दाख में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज़ भी हैं, और उन मोनेस्ट्रीज़ में बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं और मेडिटेट करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लोसर। तिब्बतियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली न्यू ईयर की बिगनिंग होता है। ये काफ़ी कलरफुल फेस्टिवल है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो लद्दाख में मनाया जाता है वो है हेमिस। इस फेस्टिवल को तिब्बतियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली 5th मंथ के 10th डे पे मनाया जाता है, और उनके गॉड के ऑनर में ये फेस्टिवल रखा जाता है जो 2 दिन तक चलता है। ये फेस्टिवल्स वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को शो करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि लद्दाख हिमालयस का एक हिस्सा होने के बावजूद किस तरह से बाकी के हिमालयन रीजन से बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ पे हैबिटेशन भी है, यूनिक वाइल्ड लाइफ है, जहाँ पर कलरफुल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज भी बनी हुई हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हैं।